Hello everyone. So today we will be discussing about we'll practicing some questions related to motion in a plane. That is, this is the day 4, and we are talking about kinematics. Yesterday we talked about motion in one dimension, and we discussed some questions related to that. Today we'll be discussing questions from motion in a plane. यहाँ ये plane ये वो हवाई जहाज वाला plane नहीं है. It's basically a surface, or we are basically trying to talk about something like motion in 2D. दो डायरेक्शंस में जब एक साथ मोशन होता है तो सो मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उन दोनों जो भी आपके पास वेलोसिटी है या जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लो. Like, just don't even think about ki they are moving together. Just think it in a manner that okay, fine, in x it is a different particle, in y it is a different particle. When you solve the situation, finally combine them together. So the best way to deal with motion in a plane is to handle both the axis or handle both the directions individually, that is x and y both. Even if it is 3D, then also आपको तीनों को अलग अलग डील करना है. That's it. यही एक बेसिक की है, इसके अलावा कुछ नहीं. There are many types. There are rainwater problem, there are river based problem, river and swimmer problem, and then there is this projectile motion, then there is circular motion. I have picked some questions from all of these. Let's try. The very first question: rain is falling vertically downwards with the speed of 4 km per hour. Rain is falling vertically downward, that means with a speed of 4 km per hour. A girl moves on a straight road with a velocity of 3 km per hour. The apparent velocity of rain with respect to the girl. So effectively relative velocity का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो आपको दिखाई देता है वो एक्चुअल में किसी और के लिए कुछ और हो सकता है. सो इफेक्टिवली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टोरियली. रिमेंबर दैट. यहाँ पे आपसे कहा गया द एपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन. एपरेंट इसलिए यूज किया गया क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्या है. रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल. इवेंचुअली विल टर्न आउट टू बी वी आर माइनस वी जी. वेक्टोरियली वी आर माइनस वी जी. तो ये वी जी है तो माइनस वी जी विल कम दिस साइड. वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर. मैग्नीट्यूड वही रहता है, नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन बदल देता है. ये 3 है, ये 4 है. So VR minus VG is going to be somewhat like this should be the resultant. This is the resultant. This is the value. We say that velocity of rain with respect to girl. ये कितना होगा? So अगर ये 4 है, ये 3 है, so effectively this is going to be root 3 square plus 4 square, effectively 5. So 5 km per hour should be the answer. C. Ship A is traveling with a velocity of 5 km due east. East, west, north, south. You should know what exactly they are. East, west, नॉर्थ, साउथ. दीज आर द 4 डायरेक्शंस वी नॉर्मली रिप्रेजेंट जब हम 2D में बात कर रहे होते हैं. जब हम 3D में बात कर रहे होते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समथिंग दिस वे. नॉर्थ साउथ ये एक प्लेन हो गया. दिस इज वन प्लेन. और अप एंड डाउनवर्ड वी हैव डाउन. दिस इज द वे. शिप ए इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर ईस्ट ड्यू ईस्ट. इस तरफ एक शिप ए है जो कि ट्रैवल कर रही है. A second ship is heading 30 degree east of north. This is ship 1 with a velocity of 5 km per hour. There is second ship is heading 30 degree east of north. 30 degree east of north का मतलब होता है कि north से 30 degree east बना रही है. Just try to understand. 30 degree east of north. North ये है, so इसका 30 degree east of north. So effectively ये वाला angle. So somewhat like another ship is somewhere here. V2. That is equal to 30 degree. तो ये एंगल 60 हो जाएगा अगर 30 उसका यहाँ से है तो. Okay. The question is, what should be the speed of the second ship if it is to remain always due north with respect to the first ship? What should be the speed of the second ship? Second ship की speed कितनी होनी चाहिए so that if it is remain always due north with respect to the first ship? Means the first ship should always think that it is in the north direction, in the northern direction, nothing else. मतलब ये चाह रहा है कि velocity of second ship with respect to first ship, that is v2 minus v1, should point out in a direction जो कि north हो. मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी, बट नॉर्थ होनी चाहिए. तो इसकी स्पीड कितनी होगी? अब पहली चीज़ तो कि इसको ऐसा क्यों दिखाई देगा. तो थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि जब बारिश आ रही होती है तो फिर बारिश अगर मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, बट आप अगर बाइक पे आगे जाते हो तो आपको लगता है ना बारिश सामने से आ रही है. It is because of your speed, velocity of rain with respect to man. So the direction can change. So in the same way, velocity
of second should with respect to 1. Now second wants कि वो उसको north or south. 1 second. What should be the speed of second ship if it remain always due north with respect to the first ship? And first, yeah, north. This is the north direction. अच्छा वो south ऊपर वाला लिखा हुआ था. This is north. Yeah, this is south. So what we are saying, velocity of second ship with respect to first ship should point in north. That is v2 minus v1. ये v2 है. Minus v1 ये होगा. This is minus v1. इन दोनों का resultant they are saying कि कहीं यहाँ आना चाहिए ऊपर की तरफ. Easy है. Make a parallelogram. This should be the situation. ये और ये बराबर है, तो फिर अगर ये v1 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा. ये एंगल 30 है, मुझे v2 चाहिए, तो आप sin 30 अप्लाई कर दो. sin 30 is equals to perpendicular upon 5 by v2. So v2 will come out to be 5 by sin 30, effectively 10 km per hour. This should be the answer. So you just have to visualize the situation, that's it, nothing else. A bird is flying toward north with a velocity of 40 km per hour and a train is moving with velocity of 40 km per hour towards east. एक north की तरफ जा रहा है, एक east की तरफ. What is the velocity of the bird noted by a man in the train? Velocity of the bird noted by a man in the train, मतलब velocity of bird with respect to train आपको निकालनी है, क्योंकि जो man है train में बैठा हुआ उसकी speed वही है जो train की speed है. So you just have to think of VB minus VT. Try it. I'm not gonna solve it. Like, think of it. In case you get any doubt, you can ask. Anyway, you can simply just have to do the vector addition, nothing else. उसके अलावा कुछ नहीं करना. जब साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखा जाता है तो उसका मतलब 45 डिग्री, मतलब बीच का एंगल है. A river is flowing from west to east. या ये river boat problem है. A river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A river is flowing from west to east. Now east, west, north, south. So west to east मतलब इस तरफ जा रहा है, तो ये velocity of river है vr. 5 meter per minute दिया हुआ है. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time. अच्छा यहाँ ध्यान रखना कुछ चीज़ें, shortest time और shortest period and all वगैरह वगैरह. मान लो ये river है, ये इस तरफ flow कर रहा है, कुछ ये इसकी direction of ये stream है. Okay, ये मेरे पास distance d है जो कि river की width है, और यहाँ से कोई swimmer start करता है. जब भी कहा जाता है velocity of man या boat in still water, that is always velocity of man with respect to river. Remember, वो velocity of man नहीं होता. Velocity of swimmer in still water, that means VMR. We are talking about that. Now, अब अगर ये swimmer इस तरफ move करता है, imagine, तो जो water है उसे वो उस तरफ और लेके जाएगा, move करवाएगा इस side. जब वो water उसे उस तरफ move करवाएगा तो उस particular situation में वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो कहीं यहाँ पहुँचेगा, समवेयर हेयर. अगर वो सामने की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो वो कहीं यहाँ पहुँचेगा. अगर वो ऑलरेडी इस तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा सा और आगे पहुँचेगा, और अगर वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो वो सामने बढ़ सकता है. यहाँ ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो ये कवर करेगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट टाइम उसे यहाँ भी लग सकता है, क्योंकि रिवर भी उसे आगे की तरफ पुश कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो शॉर्टेस्ट टाइम इज नॉट ऑलवेज शॉर्टेस्ट. तो इमेजिन लाइक कि जो मैन है वो इस तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं. तो फिर ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो इफेक्टिवली आई कैन से दैट कि अगर ये v है यहाँ पे जो भी इसकी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, जो भी है वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट. अगर डिस्टेंस d है तो इसको टाइम कितना लगेगा, d अपॉन v sin थीटा, क्योंकि v sin थीटा ही उसको क्रॉस करवा रहा है आगे की तरफ. यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ इट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. v sin थीटा से d की तरफ जा रहे हैं, सो d बाई v sin थीटा. अब अगर t को मिनिमम होना है तो उसके लिए sin थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी इफेक्टिवली sin थीटा विल बी 1. सो t मिनिमम इज नथिंग बट d बाई v. तो मैन जिस भी स्पीड से मूव करेगा उसको अगर मैं टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो दैट विल गिव मी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. एनीवे, तो यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना हो तो फिर आपके पास अच्छा ओके, यहाँ पे आपको टाइम नहीं निकालना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालना है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो एनीवे, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ये है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि मुझे दी हुई है शायद. रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट मतलब इधर से इधर. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये मुझे पता है, ये इस डायरेक्शन में है. और फिर वेलोसिटी ऑफ मैन
A man on the south bank of the river capable of swimming in still water wants to swim across the river in the shortest time. ये मेरे पास है 10. Imagine like this is somewhere 10. Okay. Now ये जो है ये है velocity of man with respect to river, VMR. That can be VM. ये VMR है. So ये 10 है velocity of man with respect to, so effectively this is nothing but V sin theta, or I can say that 10 sin theta should be equal to 10 sin theta, time नहीं दिया हुआ, shortest possible time 1 second. Okay, let's calculate it in a different manner. This is theta, this is theta. अगर मैं यहाँ पे okay, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ये 10 है और फिर ये 5 है इस तरफ. मुझे ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मिलेगा तो. सो tan थीटा विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये डिवाइडेड बाय दिस. ओके, एनीवे मेरे को ये नहीं पता है और मेरे को ये भी नहीं पता है, ना मुझे ये डिस्टेंस पता है कितना है, ना मुझे ये डिस्टेंस पता है कितना है, लेकिन मुझे दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटीज पता है. इस तरफ कुछ वैल्यू है दैट इज 10 गिवन एज वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड इस तरफ जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो गिवन विच इज 5, या विच इज 5, 10 5. सो फिर अगर ये 5 है तो इसका अगर मैं वेक्टर यहाँ पे प्लेस करूँ कुछ इस डायरेक्शन में, और फिर ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ, ये मेरे पास थीटा एंगल है. तो अगर मैं यहाँ से अपना tan थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ट्राइंगल तो कोई भी हो, एंगल तो सेम ही रहेगा, चाहे आप छोटे वाला ट्राइंगल ले लो चाहे बड़े वाले ट्राइंगल ले लो. तो tan थीटा विल कम आउट टू बी 10/5, effectively will come out to be as 2, और tan theta will come out to be 2, so theta will come out to be tan inverse 2. डायरेक्शन क्या है? so tan inverse 2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा मैंने लिया है इसके साथ एंगल, इसके साथ. तो फिर बेसिकली नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट में था पहले से और मैं उससे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट. So tan inverse 2 east of north, no, tan inverse 2 north of east. This should be the case. Okay, remember यहाँ पे कुछ नहीं करना था हमें, थोड़ा सा confusion हो गया. मुझे velocity दी हुई थी man की, man इस तरफ move करेगा तब जाके वो shortest time में पहुँचेगा. ये मुझे पता है 10, ये मुझे पता है river की speed that is 5. तो फिर मैंने दोनों को मतलब वहाँ से angle calculate किया, that's it. मुझे time वगैरह कुछ नहीं निकालना है यहाँ पे. Anyway. A swimmer wishes to cross a 500-meter river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. यहाँ पे भी आपको velocity of man with respect to river given है. The shortest possible time to cross the river. Same चीज़, आपको shortest possible time निकालना है. So time will come out to be shortest minimum d by v. Distance is 500 meters. I can say that half a kilometer because सब कुछ किलोमीटर में दिया हुआ है. And velocity of man is his speed with respect to water is 3. So 1/6. That is effectively the time, d by v. So 1/6 hours, that should be 10 minutes. It should be the case. यहाँ पे v velocity of man with respect to river. Yeah. A man can swim in still water with a speed of 2 meters per second. If he wants to cross a river of water current speed root 3 meters per second along the shortest possible path, then in which direction should he swim? Now यहाँ पे क्या है shortest possible path. So shortest possible path जो होगा वो ये वाला ही है, बिल्कुल perpendicular वाला path. This is the way. But यहाँ पे river भी move कर रही है. Man can swim in still water with a speed of 2 meters per second if he wants to cross a river of water current speed root 3 meters per second. ये है root 3 meters per second. इससे वो river चल रही है. This is VR. Then in which direction should he swim? अब अगर मान लो ये इस तरफ मूव करता है velocity of man with respect to river, this is the case. See, मतलब क्या है इसका कि अगर कोई पर्सन यहाँ बैंक पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसको ये लगना चाहिए कि वो सीधा जा रहा है, तभी वो सीधा पहुंचेगा. रीजन बीइंग, क्योंकि अगर वो सीधा खुद जाने की कोशिश करेगा तो रिवर उसे आगे की तरफ बहा के ले जाएगा. सो इफेक्टिवली ही नीड्स टू मेक सम एंगल ऑपोजिट टू द रिवर करंट सो दैट ही कैन बैलेंस दैट रिवर करंट फ्लो, और वो उधर जाने की कोशिश करे, बट बिकॉज ऑफ द रिवर करंट ही मूव्स फॉरवर्ड एंड फाइनली ही लैंड्स अप समवेयर एट दिस लोकेशन. ये है शॉर्टेस्ट पाथ. ये अब ये मुझे VMR दिया हुआ है, दैट इज द वैल्यू
अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद रिस्पेक्ट टू 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2। और फिर ये मुझे पता है दिस इज √3, दिस इज वी आर, दैट इज √3, और ये होना चाहिए वी एम आर, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इफेक्टिवली पर्सन जो बाहर खड़ा है उसे दिखना चाहिए कि वो सीधा जा रहा है, तभी वो सीधा जा रहा होगा। सो ये वी एम है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है। वी एम आर इज नथिंग बट वी एम माइनस वी आर, और आई कैन से दैट वी एम इज नथिंग बट वी एम आर प्लस वी आर प्लस वी आर। ये वी एम आर है, ये वी आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं सेंटर में आना चाहिए, तभी जाके वो क्रॉस करेगा इसको, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पे। तो ये 2 है, ये √3 है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा विल कम आउट टू बी √3/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये 60 है, टोटल एंगल होगा 150 एट एन एंगल 150 टू द वाटर करंट, करंट वाटर करंट के साथ 150 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। दिस इज द सिचुएशन। Moving next, a truck is moving with a constant velocity of 54 km per hour. In which direction should the stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from the floor of the truck? देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये फ्लोर ऑफ द ट्रक है, तो जिस भी फ्लोर पे आप हो उस फ्लोर की स्पीड आपकी स्पीड है। तो अगर मान लो ट्रक v स्पीड से जा रहा है, तो इफेक्टिवली यहाँ पे जो भी पर्सन है उसकी स्पीड v है फिलहाल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसके हाथ में अगर कोई स्टोन है तो उसकी स्पीड भी v है। तो जब वो उसे ऊपर की तरफ थ्रो करेगा तो ऊपर उसे मान लो कि v1 स्पीड से थ्रो कर रहा है, v से वो ऑलरेडी ऊपर मतलब स्टोन आगे की तरफ जा रहा है। सो इफेक्टिवली अगर कोई पर्सन ग्राउंड से उसे देख रहा है तो उसे लगेगा कि वो उसके पास फॉरवर्ड भी स्पीड है और फिर अपवर्ड भी है, तो वो कुछ ऐसे जा रही है। दैट मीन्स वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा। विदाउट पर्सन को अभी भी वो स्ट्रेट पाथ में दिखाई देगा, पर्सन विल थिंक दैट की बॉडी ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, बट अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विल फाइंड आउट दैट द पार्टिकल इज गोइंग देयर, बिकॉज पार्टिकल तो ऐसे ही जा रहा है, जब तक ये घूम के यहाँ पे आता है तब तक पर्सन यहाँ पहुंच जाता है, तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि वापस यहाँ आ रहा है। दिस इज व्हाट रिलेटिविटी इज। सो अ ट्रक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 54 km per hour। 54 इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 54 km per hour। And in which direction should the stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from the floor of the truck so as to appear at right angles to the truck for a person standing on the earth? अब इसको लगना चाहिए कि ये बॉडी स्ट्रेट गई है, तो मतलब इसको ये वाली जो वेलोसिटी है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इफ अ पर्सन इज थ्रोइंग अ स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स वो इधर वाली वेलोसिटी का तो कोई फर्क डाल ही नहीं रहा है, तो इसको प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। बट इफ अ पर्सन थ्रोज द स्टोन इन दिस डायरेक्शन, इमेजिन, then a component of the velocity will also lie here which can cancel the component, the horizontal component, यानी कि जो velocity actual velocity है उसकी ट्रक की velocity को cancel कर सकता है। So in which direction angle with the direction of motion of the truck, मुझे इसके साथ एंगल निकालना है, इसके साथ एंगल निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रक मैंने ये एज्यूम किया है। पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं, लेट्स से इसको थीटा कहते हैं। सो अगर ये v है तो ऊपर की डायरेक्शन होगी v cos थीटा और इधर की डायरेक्शन होगी v sin थीटा। अब अगर मुझे इसको कंप्लीटली कैंसिल करना है तो आई कैन से दैट v sin थीटा को 15 के बराबर होना चाहिए, v sin थीटा शुड कम आउट टू बी 15 और sin थीटा शुड कम आउट टू बी 15/v। इवेंचुअली sin थीटा इज कमिंग आउट टू बी 15/v। सो v कितना है, stone be projected up with the velocity of 20 meter per second, so 3/4, v is 20, 3/4 sin theta comes out to be 3/4। मेरे पास रिजल्ट्स कॉस में है, मुझे एंगल भी पूरा बताना है इफेक्टिवली, तो मेरे पास जो sin थीटा की वैल्यू आई ये है, और फिर जो एंगल है दैट इज थीटा प्लस 90, थीटा प्लस π/2। सो ये मेरे पास बना cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा यहाँ से, cos थीटा विल कम आउट टू बी एज, अगर sin थीटा 3/4 है, सो एंगल तो वैसे भी थीटा प्लस 90 है। सो आई कैन से दैट क्योंकि मुझे ट्रक की वेलोसिटी के साथ एंगल बताना है, तो फिर ये बनेगा 90 ऐड कर देंगे इसके साथ, तो फिर ये बनेगा साइन थीटा यानी कि थीटा प्लस 90 यानी कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस π/2। दीज आर द टू एंगल्स। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बट माइनस का कॉस थीटा होता है, नहीं 90 प्लस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे ये π/2 है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा सो इफेक्टिवली इट विल कम आउट टू बी कॉस इनवर्स, तो आना चाहिए 3/4 की -3/4, थोड़ा सा मैथ्स में घुस गए,
यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को 3/4 अज्यूम करके चल रहे हैं, सो फिर ये एंगल बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 3/4, cos theta will come out to be yeah, but no benefit from that also. Sin inverse 3/4 plus pi/2 and cos inverse minus 3/4. या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, I'll have to check, या इसके अंदर यहाँ पे अभी ये देखना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करने पे क्या आता है. So sin inverse 3/4 plus pi/2. Is there any other way we can convert it into cos? Sin theta 3/4. I can't find a way out. Actually, we should have thought it before only that the options are in cos. So let's means हमें पूरी term cos में calculate करनी चाहिए. Okay, and just try. Okay, we can do one thing. Let's take something like this. Say for example, the velocity in which the stone has been thrown is in this direction. The velocity of truck is in this direction. The person should feel like it is going up. So this component must be cancelled, जो कि हमने पहले किया था as it is. Velocity is जिससे उसको थ्रो करना है that is 20. ये है 15 क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर है. हमने इसको थीटा अज्यूम किया था तो ये v cos थीटा बना था, इस v sin थीटा बना था. Let's do it in the cos, in the sin itself or in the cos itself. So instead of taking this theta, I am taking this time this as theta. So this angle will be pi minus theta. It should be that way. Yeah, this will be pi minus theta. तो हमारे पास शायद cos में कोई रिजल्ट निकल जाएगा. और ये जो वैल्यू बनेगी v cos थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा एंगल ये है. v cos थीटा 15 के बराबर होना चाहिए. v cos थीटा should be equal to 15. cos theta should come out to be 15/20. Cos theta will come out to be as 15/20, that is 3/4. So theta will come out to be as cos inverse 3/4. लेकिन ये एंगल इसके साथ है, ऑपोजिट टू द रिवर करंट. अब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट टू द रिवर करंट है. 2/3 माइनस 1/4 पता नहीं, तो होगा तो यही, लेकिन अभी भी इसको हमें कैलकुलेट करना है. सो आई थिंक cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है. दिस इज द रिजल्ट. दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा शायद आपने. सो फिर ये बनेगा पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 should come out to be as cos inverse minus 3/4. This should be the result. So yeah, this was a mistake. Actually हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि जो options हैं वो कैसे दिए हुए हैं. I was in a too much hurry and I didn't look at that actually. That's why it happened. Anyway, the ratio of the distance carried away by the water current downstream in crossing a river by a person making same angle with downstream and upstream is 2:1. The ratio of the speed of person to the water current cannot be less than the ratio of the distance carried away by the water current downstream in crossing a river by a person making same angle with downstream and upstream is 2:1. The ratio of the speed. Okay, let's try to understand. There is a person who is trying to cross a river, and to cross the river, what he's doing, once he's moving in this direction making some angle theta. So if the river is flowing in this direction, then the person will be carried because of the river and he will land somewhat here, let's say, because of the stream, and it will cover some distance. Let's assume it to be x1. And in the same way, जब वो दूसरी तरफ से यानी कि अपस्ट्रीम वाले जोन में जाता है, दूसरी तरफ से मूव करता है, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अपस्ट्रीम होगा. अपस्ट्रीम का मतलब रिवर के अगेंस्ट, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में. तो फिर वो जो डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है बिकॉज ऑफ द रिवर दैट इज कैरीड. रिवर उसे कितना पुश कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है. तो फिर वो उसको कैरी कर रहा है, और रिवर ने मान लो कि वो यहाँ लैंड करने वाला था, वो यहाँ की जगह कहीं यहाँ लैंड किया, तो रिवर ने उसे कुछ पुश किया. सो इफेक्टिवली वो जो डिस्टेंस वहाँ पे वो कवर कर रहा है, लेट इट बी x2. सो क्वेश्चन में कहा गया है जो डाउनस्ट्रीम के साथ वो कवर करता है और अपस्ट्रीम के साथ वो कवर करता है, दैट इज इन द रेशियो 2:1. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. x1 रिवर उसे कितना पुश कर रहा है, हमें उसके बारे में बात करना है. तो मान लो कि वो v वेलोसिटी से जा रहा था, तो रिवर के साथ जो एंगल वो बना रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कैरिड अवे बाय द वाटर करंट डाउनस्ट्रीम इन क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ पर्सन मेकिंग सेम एंगल विद डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम.
सो पहले ये वाला जो एंगल अभी जो बन रहा है v cos थीटा ऊपर की तरफ और फिर v sin थीटा इस तरफ फॉरवर्ड साइड में, v sin थीटा प्लस रिवर की जो भी वेलोसिटी होगी वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कैरिड अवे बाय द वाटर करंट डाउन स्ट्रीम इन क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ पर्सन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पर्सन टू द वाटर करंट। ओके, तो वाटर करंट की स्पीड हम मान लेते हैं v वाटर और पर्सन की स्पीड हमने अज्यूम कर ली v ओनली। तो फिर x1 जो है दैट विल बी इक्वल टू vw, vw भी उसे इस तरफ लेके जा रहा है और v sin थीटा भी उसे इस तरफ लेके जा रहा है। जब दोनों उसे इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और मान लो कि वो t टाइम बाद वहां पे पहुंचता है, तो इफेक्टिवली इट शुड बी vw प्लस v sin थीटा, क्योंकि थीटा मैंने वर्टिकल के साथ लिया है, ये तो गई स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा, तो रिवर को क्रॉस करने में जो भी टाइम लग रहा है, इमेजिन लाइक कि उसका रिवर का डिस्टेंस d है, जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो d डिवाइडेड बाय ये वाला कंपोनेंट उसे पुश करवा रहा है, तो डिवाइडेड बाय v cos थीटा, दिस इज x1। x2 विल कम आउट टू बी vw, इस तरफ उसे लेके जा रहा है, माइनस, क्योंकि अब जो उसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। अगर मैं इसको अभी भी थीटा लेके चल रहा हूँ तो v sin थीटा सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस v sin थीटा इंटू डी बाय, अभी भी उसको ऊपर की तरफ मतलब क्रॉस v cos थीटा ही करवा रहा है ये, और मुझे x1 बाय x2 निकालना है, तो फिर दोनों को डिवाइड करो, x1 अपॉन x2, ये अच्छा ये मुझे दिया हुआ है 2:1, ये 2 है, तो मेरे पास दो रिलेशन आ गए, vw प्लस v sin थीटा इंटू डी बाय v cos थीटा डिवाइडेड बाय द होल टर्म vw माइनस v sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट निकल के आएगा vw बाय v का, इट कैन बी एनीथिंग लाइक सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी हो सकता है। अब इमेजिन लाइक कि आपके पास आया कोसेक थीटा, सो कोसेक जो है वो हमेशा, अगर मान लो ये वैल्यू आई कोसेक थीटा बाय 2 और बाय 3 और समथिंग लाइक दिस, लेट्स से हमें इमेजिन लाइक बाय 5 आ गई, कोसेक थीटा बाय 5, यू नीड टू सॉल्व इट, जब आप इसे डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, सो कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 5 जब आया, तो कोसेक थीटा के बारे में वैल्यू चेक करो। अब कोसेक थीटा 0 हो सकता है, साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा 0 है, 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो जो कोसेक की वैल्यू है 1 बाय साइन होती है, सो इट कैन ऑलवेज बी, ये 1 बाय 0 होगा तो इन्फिनिटी चला गया, 1 बाय 1 होगा तो इफेक्टिवली 1, सो मतलब दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, तो जब कोसेक थीटा 1 से बड़ा होगा तो ये नंबर हमेशा 1 बाय 5 से बड़ा ही होगा। इसके रिस्पेक्ट में आप एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, यू विल नीड टू सॉल्व इट एंड देन इट विल कम आउट एज द रिजल्ट। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट, a particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. If g is acceleration due to gravity, then its range is, its range, okay, यहाँ पे again अब मेरे पास जब normal projectile कहा गया है तो range is u square sin 2 theta by g on a horizontal plane is twice the greatest height attained, और फिर h max होता है जो कि maximum height होती है, वो होती है u square sin square theta by 2g। सो अगर v से भेजा गया है तो फिर v तो आप यूज कर ही सकते हो u की जगह पे, हाइट अटेन्ड, इफ g इज एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी देन इट्स रेंज इज, रेंज मुझे निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ दिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड, सो इफेक्टिवली 2r इज इक्वल्स टू h max, या पुट इट देयर, u स्क्वायर साइन, या मतलब v स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई g शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g 2g, g से g कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 2v स्क्वायर बाय 4v स्क्वायर, एक्चुअली 4v स्क्वायर बाय, अच्छा v भी कैंसिल ही हो गया, v स्क्वायर कैंसिल, सो इफेक्टिवली मेरे पास वैल्यू आई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4, या टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4, मुझे कैलकुलेट करना है रेंज, तो ये बनेगा v स्क्वायर बाई जी, ये तो है ही, और साइन 2 थीटा, अब मुझे निकालना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू चाहिए, तो टैन थीटा 4 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan theta is equals to perpendicular upon base, so 4 by 1, make a triangle, this is 4, this is 1 theta,
तो फिर ये बन गया √4√17। तो यहाँ से साइन थीटा आएगा 4/√17, कॉस थीटा आएगा 1/√17, और फिर ये बनेगा v²/g इंटू 2 साइन थीटा 4/√17, कॉस थीटा 1/√17, इफेक्टिवली 8v²/17g 17g। और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट है उसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। A particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. If g is acceleration due to gravity, then its range is so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. Okay. Twice the greatest height attained. ठीक है. So that means 2u² sin 2 theta by g. यहाँ पे ये 4 होगा. That is my mistake. And let's do it again. A particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height. Range is twice the greatest height. So 2 times, okay, range is twice the greatest height, 2 times of h max. So range will come out to be 2 h max, which is equal to u² sin square theta upon 2 times of g. So effectively u² sin square theta by g, u² sin square theta by g, u v है मेरे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, और so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height. ठीक है. अगर मैं इसको u² sin 2 theta by g, रेंज होता है u² sin 2 theta by g, तो sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू 2, u² कैंसिल, g से g कैंसिल, यहाँ से मेरे पास आया sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू 2, ये मेरे पास रिजल्ट आया. ठीक है. अब मुझे रेंज चाहिए अगर, तो रेंज यहाँ पे एंगल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, u² sin 2 थीटा बाई जी होता है, और u मेरे पास है, g मेरे पास है, sin 2 थीटा नहीं है, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g, और g है, ओके, g पता है मुझे 2 sin थीटा cos थीटा, ऑप्शंस में मेरे पास थीटा नहीं है, tan थीटा पता है मुझे 2 है, तो अगर tan थीटा 2 है तो 2/1 कह सकते हैं इसको. If you make a triangle, this is 2, this is 1, this is theta, तो फिर ये बनेगा √2² + 1 यानी कि √5. So if you solve it, sin theta will come out to be 2/√5 and cos theta will come out to be 1/√5. Okay. वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा u² इंटू 2/√5 1/√5 यानी कि 2/5 डिवाइडेड बाई g, तो 4u²/5g, 4v²/5g. This should be the correct result. Oh, it was a long question. Actually, it wasn't a long question. वो question को read करने में थोड़ा सा time लग गया. During a projectile motion, if the maximum height equals to the horizontal range, maximum height equal to horizontal range, h max को r के बराबर पुट करना है, angle निकालना है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, effectively it should come out to be tan inverse 4. ये होता है रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद भी रख सकते हो. दोनों का जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना. The point from where a ball is projected is taken as the origin of the coordinate axis. The x and y components of displacement are given by x and y. x और y की वैल्यू दी है. What is the velocity of projection? The x and y components of its displacement where a ball is projected is taken as, okay. x मुझे दिया हुआ है 60. Differentiate करो, dx by dt comes out to be 6. ये है velocity in x. Velocity in y. y is equals to 80 minus 5t square. So differentiating will get 8 minus 10t. So ये है Vy, 8 minus 10t. At t is equals to 0, Vy is 8. So initial velocity in x is 6, in y it is 8. So 6 I cap plus 8 j cap. This is the velocity of the projectile, initial velocity of the projectile. If you take the magnitude, under root 6 square plus 8 square will come out to be 10 meter per second. This should be the result. A body is projected at an angle of 30 degree with the horizontal and with the speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 second? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है.
अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी समझ लेंगे। लेट्स से कि किसी बॉडी को v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, u cos थीटा दैट इज i कैप एंड u sin थीटा j कैप। आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी पहुंची, तो अब ये जो एंगल बना रही है ये कुछ भी हो सकता है। u cos थीटा तो उतना ही रहेगा क्योंकि x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो y वाला है वो चेंज होगा। कितना चेंज होगा? तो u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये होगी v फाइनल। अब चाहे यहाँ पे कोई भी टाइम हो आप पुट कर दो, उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। वैल्यू पुट करो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द हॉरिजॉन्टल ओके एंड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 30 दिया हुआ है, एंगल पता है आपको। सो अगर एंगल भी पता है आपको तो फिर ये बन गया u cos थीटा u sin थीटा, पुट करो वैल्यू। व्हाट इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड, टाइम आपको पता है, पुट करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है वो जीरो ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 1.5 सेकंड होना चाहिए, चेक 3 होना चाहिए। 2u sin थीटा बाई जी, u है 30, sin थीटा है हाफ और फिर g है 10। सो इफेक्टिवली ये बन गया 3 सेकंड। यस यू कैन सी दैट 3 सेकंड इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 1.5 पे मिड पे होगा, बट जरूरी नहीं हमेशा 1.5 ही दिया जाए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। A grasshopper can jump a maximum distance 1.6, it spends negligible time on the ground। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब कि जो जंप कर रहा है ग्रासहॉपर वो रेंज मैक्सिमम कवर कर रहा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी, ये इसकी रेंज है। ये 1.6 है, तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर मिल जाएगा 1.6 जी। हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में कितनी दूर जा सकता है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी कितनी, तो अगर मान लो मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 का एंगल बना रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी u cos 45 यानी कि u बाई रूट 2। सो u आपको यहाँ से मिल गया, u बाई रूट 2 आपको स्पीड पता चल जाएगी जो हॉरिजॉन्टल में है। 10 सेकेंड का टाइम है, तो u बाई रूट 2 इंटू 10, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा जो भी हो गया, या u by root 2 into 10, that will give you the total horizontal distance. A body has an initial velocity of 3 and has an acceleration of 1 normal to the direction of the initial velocity, then its velocity 4 seconds after the start. A body has an initial velocity of 3 meter per second and has an acceleration of 1 meter per second square normal to the direction of the initial velocity। मतलब u इधर है, a इधर है, okay, then its velocity 4 seconds after the start is, okay, see, v is equals to u plus at, but you'll have to use it vectorially। u is, let's say horizontal direction है तो i cap मान लेते हैं 3 i cap plus acceleration is 4 j cap 90 डिग्री के एंगल पे, t 4 सेकंड, so 16 j cap, 3 i cap plus 4 16 j cap, this will be the velocity, and if this is the velocity then आपसे क्या पूछा गया है, what is the magnitude of this? 5 meter per second, 7 meter per second along the direction with the direction of initial velocity, okay, 4 सेकेंड, ओके सॉरी मैं मिस्टेक, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको 1 दिया हुआ है ना, 4 नहीं है, एक्सेलरेशन इज 1, सो ये बनेगा 1 into 4, तो इफेक्टिवली बना 4 j कैप। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है। अब चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो, 4/3 tan इक्वल टू 4/3, so tan इनवर्स 4/3 इज द एंगल। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Two tall buildings are 30 meter apart. The speed with which a ball must be thrown horizontally from a window 150 meter above the ground in one building so that it enters a window 27.5 meter from the ground on the other building। एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक विंडो है, मान लो कि किसी को कुछ लेटर वेटर पार्सल वगैरह फेंकना होगा, वो यहाँ से फेंक रहा है और फिर वो यहाँ पहुँचना चाहिए, जस्ट एंटर करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, कितना डिस्टेंस है, तो ये जो हाइट है वो कितनी है, from a window 150 meter above the ground in one building so that it enters a window 27.5 meter from the ground in the other building।
टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट, ये पता चल गया, 30 है. द स्पीड विद विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबव, ये है 150 टोटल. In one building so that it enters a window 27.5 मीटर from the ground in the other building, ये है 27.5. तो आपको ये हाइट पता चल गई, दोनों को माइनस कर देना. ऑन द अदर बिल्डिंग मुझे यू निकालना है. क्या निकालना है? यू ही निकालना है. द स्पीड विद विच, यस, तो मान लो ये यू स्पीड से थ्रो कर रहा है. सो आपको स्पीड निकालनी है. देखो इसने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड 0 है. तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड 0 है तो फिर इसको एच हाइट कवर करनी है. मान लो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ. सो एक्स विल कम आउट टू बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर जो भी है. तो t विल कम आउट टू बी √2x/g. इतने ही टाइम में ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी विद स्पीड u. उतने में u इंटू √2x/g, ये हॉरिजॉन्टल अगेन, स्पीड इंटू टाइम विल गिव मी द डिस्टेंस, दैट इज 30. x आपको पता है क्योंकि आपने सेपरेशन निकाल लिया, 150 माइनस जो भी है 27.5. g पता है, u यहाँ से निकल जाएगा, जो भी रिजल्ट है कैलकुलेट कर लेना. Two paper screens A and B are separated by 150 meter. Below 150 meter, a bullet pierces A and B. The hole in B is 15 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, then the velocity. Same question, exact same question. यहाँ से हिट किया है, यहाँ जाके वो लग रहा है. पहले इसको यहाँ पे हिट किया, फिर उसके बाद यहाँ जाके लग रहा है. तो आपसे पूछा गया है इफेक्टिवली कि क्या स्पीड होगी. सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइक बिफोर, यू कैन डू दैट. A projectile can have same range r for two angles. तब होता है जब एक एंगल थीटा हो, दूसरा 90 माइनस थीटा हो. If t1 and t2 are the times of flight in the two cases, then what is the product of two times of flight? You can calculate it. Time of flight is 2u sin theta by g. एक 2u sin theta by g हो जाएगा, दूसरा 2u cos theta by g हो जाएगा. So if you multiply both of that, t1 t2 comes out to be u square 2 sin theta cos theta into 2 divided by g. और u square sin 2 theta by g, ये रेंज होता है. सो इफेक्टिवली इट विल कम आउट टू बी 2r, 2 टाइम्स ऑफ r. सो t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r. दिस इज द केस. इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है. इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप ध्यान रखते हो प्रोजेक्टाइल की एंगुलर प्रोजेक्शन की, तो बहुत अच्छी बात होती है. x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसी को अगर आप कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, वेयर r इज द रेंज. यू कैन कन्वर्ट इट, चेंज कर सकते हो. आपसे पूछा है रेंज बताओ, कुछ नहीं करना, जस्ट कंपेयर करना है आपको. आपको इस वेलोसिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. वैसे वेलोसिटी से भी निकालने के तरीके हैं बट लेंथी हो जाएगा. 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक x कॉमन, बाहर निकाल लेते हैं x को. तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू x बाहर, अंदर आया 12, और भी बाहर कुछ निकाल सकते हैं, 3 भी बाहर ले सकते हैं. 3x बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ बचा 4 माइनस x/4. ये होगा ना, 3 माइनस x/4. यप. अब अगर ये मेरे पास रिलेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस 1 माइनस x/r. सो सॉल्व करो. देखो ये आया 3x इंटू इस, यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए 1 माइनस x/r. तो अगर मैं इस पूरे रिलेशन को व्हाट शुड आई डू, 1 माइनस x/r करने के लिए बेटर आप 12x को बाहर ले लो. 12x को बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1. अब यहाँ तो 12 है नहीं, ये था 3/4 एक्स स्क्वायर. तो फिर इसको हम एक काम कर सकते हैं, आई विल डू इट अगेन फॉर द क्लैरिफिकेशन. ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 12x को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर था. तो इमेजिन कि मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया था और 12 से डिवाइड किया था. इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो एक 12 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, ये मेरे पास रिजल्ट बचा. तो ये बचा 12x इंटू 1 माइनस 3/36x, और आई कैन से दैट 36/3x. दिस इज द सिचुएशन. x/r, सब 36/3. इसको आप सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो. तो 36/3 आ जाएगा 12. 12 मीटर इज द आंसर. दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट. द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. द रेंज ऑफ आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट इज मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r, h1 एंड h2? रेंज सेम है, h1 h2 भी सेम है. तो रेंज सेम होती है तभी जब दोनों के बीच में एंगल सेम होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री होता है.
So what is the relation between r h1 and h2? h1 होगा u square sin square theta by 2g, h2 होगा u square cos square theta by 2g, क्योंकि 90 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, h1 h2, तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, नहीं u टू द पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, 4g स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट। अब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g रेंज होता है, तो इसको कन्वर्ट करो, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एक जगह लिखो बाय 2g बाय g, और u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा दूसरी जगह लिखो बाय g, और यहाँ बच गया एक्स्ट्रा 1/4, और क्या बचा, बस यही बचा। अब u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g रेंज नहीं होता, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g रेंज होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो पूरे रिजल्ट को, क्योंकि 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, तो ये एक रेंज बन गया, ये एक रेंज बन गया, तो ये बना r स्क्वायर बाय 16 44, और ये है h1 h2, सो 16 h1 h2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्या निकालना है, यही कुछ है शायद, r comes out to be 4 root h1 by h1 h2, option D। At what angle with horizontal should a ball be thrown so that the range r is related to the time of flight as r equal to 5t square? Same equations put करनी है और कुछ नहीं करना, r is equals to 5t square, r की रिलेशन पुट करो, t की वैल्यू पुट करो, दोनों का रिजल्ट जस्ट फार्मूला। A ball rolls off the top of a staircase with a horizontal velocity u meter per second. I'll just tell you the concept, solve तो आप कर ही सकते हो। Off the top of a staircase with a horizontal velocity u, u से किसी को इसको ऐसे ड्रॉप किया गया, ये स्टेयर्स है मेरे पास, या और आपसे कहा गया कि इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, h तो इसकी हाइट है, और b मीटर वाइड, ये b है, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, मान लो कि nth स्टेप पे हिट करता है, तो एज पे जब वो हिट करेगा तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये तो हो गई इसकी रेंज, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, ये तो हो गई इसकी रेंज, यानी कि अगर b ये है तो nb, और ये जो हाइट ये ट्रैवल करेगा nh, या तो हॉरिजॉन्टल रेंज में जो टाइम होता है वो होता है √2h/g, तो √2nh/g, ये तो लगेगा टाइम, और फिर u स्पीड से जा रहा है, तो फिर nb यानी कि रेंज विच इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल्स टू u स्पीड यानी कि टाइम, और √2nh/g, ये रिजल्ट बनेगा। क्या निकालना है, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ n की वैल्यू निकालनी है, n स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2nh/g, n से n कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आई u स्क्वायर 2h/gb स्क्वायर, u square 2h by gb square. This should be the result. A number of bullets are fired in all possible directions with the same initial velocity u. Think of like the maximum area of the ground. तो मतलब maximum range cover करना चाहिए। बुलेट को ऐसे फायर किया गया है, ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे बनाएगा, और इसको अब चारों तरफ घुमा दो, तो ये जो एरिया कवर करेगी बुलेट्स, मुझे वो एरिया निकालना है, तो एरिया सर्कल बनेगा, और रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये बनेगा यू स्क्वायर बाई जी, और फिर एरिया कितना हो जाएगा, पाई यू स्क्वायर बाई जी, दिस शुड बी द रिजल्ट। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, अच्छा ये तो रेडियस होगा, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, मतलब पाई यू टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, पाई यू टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, yeah, this should be the result. Two stones are projected with the same speed but making different angles with horizontal, their ranges are equal. Range equal है तो एक अगर pi by 3 है तो दूसरा pi by 6 होगा, and its maximum height is h1, then the maximum height of the other will be, दोनों के बीच में एक relation होता है h1 by h2 is equals to tan square theta, निकाल सकते हो u square sin square theta by 2g, एक रेंज है, दूसरी होगी h2 is equals to u square sin 90 minus theta यानी cos square theta by 2g, दोनों को डिवाइड करो, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा की जो भी वैल्यू आप अज्यूम करोगे उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ पाई बाय 3 है तो 60, देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी u फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ से एक बॉडी को u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया, ओके।
The angle of inclination is 45 and the top is connected to a well of diameter 40. If the body just manages to cross the well, यहाँ से बॉडी गई और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने इसको क्रॉस कर लिया, जस्ट क्रॉस किया, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई रेंज 40। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से इसने यू स्पीड से भेजा है, जब तक ये इंक्लाइन पे ऊपर जा रही होगी, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी तो उसे नीचे खींचेगी ना। तो यहाँ इसकी स्पीड यू नहीं होगी, यहाँ इसकी स्पीड यू से कम होगी, तो यहाँ स्पीड मान लेते हैं वी होगी। और फिर ये इसने यहाँ पे कवर किया रेंज। तो यहाँ से ये तो समझ आ जाता है कि रेंज इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये इसने कवर कर लिया है। और इंक्लिनेशन 45 है तो ये टर्म 1 हो गई है, तो ये बना वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी यानी कि 10 इज इक्वल्स टू रेंज यानी कि 40। तो वी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 400 और फिर वी विल कम आउट टू बी अंडर रूट 100 अंडर रूट 4 इफेक्टिवली विल कम आउट टू बी 20। ये तो हो गई स्पीड यहाँ पे। बट यहाँ कितनी होगी? तो यहाँ पे इसको ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा एंगल जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन के साथ। ये इतना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, पढ़ा होगा अपने लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि अगर यहाँ पे बॉडी है तो नीचे एम जी लग रहा है, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। सो इस साइड जी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो सो जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है और स्मूथ सरफेस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल मुझे निकालनी है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, टाइम नहीं पता, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस भी नहीं पता, व्हाट कैन बी डन, s is equals to ut plus half vt square, v square is equals to u square plus 2as. Okay, length of the inclined plane दिया हुआ है, sorry I didn't read it, 20 root 2. So I can say that v square यानी कि 20 square is equals to u square यानी कि पता नहीं plus 2 times of acceleration यानी कि g sin theta, तो यानी कि 10 by root 2 which is a retardation, opposite direction, into displacement which is 20 root 2. This gets cancelled and 20 minus 400, so ये बना u square is equals to 400 plus 400 800 और u will come out to be under root 800 यानी कि 20 root 2. this should be the result, 20 root 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंक्लाइन से ऊपर तक जाते जाते स्पीड डिक्रीज होगी, कितनी होगी वो मुझे निकालना था। A projectile is fired from level ground at an angle theta above the horizontal. The elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta by the relation. ये एक कंडीशन है, आप निकाल सकते हो। वैसे तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, ये मेरे पास थीटा एंगल है और कहा गया है द एलिवेशन एंगल फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये फाई है, फाई। तो आई कैन सी दैट tan फाई इज नथिंग बट h max बाय r by 2, क्योंकि ये टोटल रेंज का हाफ है मिड पे, और थीटा के बीच में द एलिवेशन एंगल फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट इज रिलेटेड टू थीटा बाय द रिलेशन। मुझे एच मैक्स का फॉर्मूला पता ही है, मुझे आर का फॉर्मूला पता ही है, दोनों को पुट करो रिलेशन आ जाएगा जो भी हो। A projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap. The Cartesian equation of its path is, initial velocity is given as I cap plus 2j cap. So effectively मेरे पास जो result बनेगा that will come out to be, sorry for this is the government notification. Anyway, a projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap. So u is equals to I cap plus 2j cap and इसकी कार्टेशियन इक्वेशन मुझे निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ है कि इसके जो पाथ की इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी। सो पाथ की जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअल में होती है y is equals to x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta. दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे मेरे पास u है, tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 2/1 बिकॉज y by 1, और u की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि रूट 5। आप वैल्यू पुट कर सकते हो, tan थीटा 2 है तो फिर ये बनेगा 2x, तो पहले तो ये तो ख़त्म ही हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर यानी कि 5 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ओके cos स्क्वायर थीटा नहीं मेरे पास, tan थीटा है, तो tan थीटा 2/1 है तो cos थीटा आप निकाल सकते हो, ये बना रूट 5, तो cos थीटा विल कम आउट टू बी 1/√5, सो इफेक्टिवली cos स्क्वायर थीटा विल कम आउट टू बी 1/5, ये कैंसिल हो गया। सो 2x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर,
G is 10, so 2x minus 5x square. 2x minus 5x square. This should be the correct result. In figure this, the time taken by the projectile to reach. अच्छा, यहाँ पे you can think of A to B के बीच का टाइम मुझे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुझे टाइम दिया हुआ है t. ये इसमें मुझे t टाइम लगा है. Then the distance AB is equal to. अगर आप incline plane को solve करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि incline में horizontal में भी acceleration होता है. So the better way is कि आप ये वाला angle लो, which is given as 60, और u का ये वाला component निकालो, which is u cos 60. यहाँ कोई acceleration नहीं है, तो AC अगर मैं निकालूं तो AC will come out to be as u cos 60 times t, और फिर the time taken by the projectile to reach from A to B is t. A to B तक पहुंचने में, अब जितना टाइम A to B पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम A to C में भी लगा है, क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन ही उसी का. So that is t. Then the distance AB is equal to, मुझे distance AB कैलकुलेट करना है. u cos 60 into t, अच्छा u के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो cos 60 is nothing but sin 60 cos 60 will come out to be equal to as 1 by 2. So u by 2 into t is AC. अब AC पता है, AB निकालना है, तो ये 30 दिया हुआ है. I can say that cos 30 is equals to base upon hypotenuse, तो AC by AB. AB will come out to be as AC by cos 30, यानी AC sec 30. Cos 30 is root 3 by 2, so effectively 2 by root 3. AC is u by 2 into t into 2 by root 3. So ut by root 3. First option. A body is moving in a circle with a speed of 1 meter per second. The speed increases at a constant rate of 2 meter per second. Circular motion के अंदर दो acceleration होते हैं, AC and AR. AT. AC होता है centripetal acceleration v square by r, जो सेंटर की तरफ लगता है जब बॉडी मूव कर रही होती है तो. और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें स्पीड भी बढ़ रही होती है, तो वो होता है ए टेंजेंशियल, और इस तरफ जो लगता है वो होता है ए सेंट्रिपिटल, सेंटर की तरफ. दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है. सो स्पीड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मुझे ए टेंजेंशियल दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये है 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, दैट मीन्स पर सेकंड स्क्वायर. Assume that the radius of the circle described is 25 meter. The total acceleration of the body after 2 seconds is. रेडियस 25 मीटर है, r 25 दिया हुआ है, और बॉडी अभी जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, बट 2 सेकंड बाद की स्पीड से मूव करेगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे ये a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, u इज 1 प्लस एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज ऑल्सो 2, सो इफेक्टिवली बिकम्स 5 मीटर पर सेकंड. दिस इज वेलोसिटी. ये वेलोसिटी है 2 सेकंड के बाद, तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल होगा v स्क्वायर बाय r, यानी कि r दिया हुआ है 25, 25 by 25, effectively 1. ये AC आ गया. So AC is 1, AT is 2. So A net will come out to be root 2 square plus 1 square, effectively root 5. This should be the result. A particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed is given by v equal to 2t, where t is in seconds and v in meter per second. Then, okay, v is equals to 2t, circular motion है, ध्यान रखना, v is equals to 2t, where t is in seconds and v is in meter, and radius is 20 centimeter. Moves in a circle of radius this. The radial acceleration at t equal to 2 seconds is 80 meter per second square. Radial acceleration मतलब centripetal acceleration. Velocity कितनी होगी? So 2 into t, 2 into 2, that is 4 meter per second square. 4 meter per second velocity. Radial acceleration will come out to be v square by r. So first option if I check, so 4 4 16 by r, that is 20 centimeter, which is equal to 1 over 5 meters. So effectively it will come out to be 80 meter per second. First option is correct, 80 meter per second square. Correct. Tangential acceleration at t equal to 2 seconds is 2 meter per second square. Tangential acceleration will be differentiation of this, dv by dt. That is 2. So tangential acceleration is constant, 2 meter per second square. चाहे वो 2 सेकंड पे हो चाहे 4 सेकंड पे हो. This is also correct. This seems multiple correct. Net acceleration at t equal to 2 seconds is greater than 80. ये 80 है, ये 2 है, तो net acceleration under root ac square plus 80 square greater than 80 होगा. Correct. Tangential acceleration remains constant in magnitude. Yes, it's constant. That is 2. Correct. A, B, C, D. चारों options correct है. Okay. Match the entries of column 1 with that of column 2. For a particle moving in a circle,
फर्स्ट, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन में AC भी होता है, AT भी होता है, ध्यान रखना। AT 0 तब होगा जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। तो फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल द एक्सेलरेशन मे बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, मे बी, मस्ट बी, होगा ही होगा। सो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए ए तो है। द एक्सेलरेशन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नो। अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन ये है, दूसरा एक्सेलरेशन ये, वेलोसिटी इधर है, सो एक्सेलरेशन का नेट हमेशा इधर होगा कहीं, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं हो सकता। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके सॉरी, इसी के अंदर बाकी ऑप्शंस चेक करना है। द एक्सेलरेशन मे बी एट सम एंगल 0 to π/2 विद द वेलोसिटी, यस करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी के साथ कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ए और सी। द एक्सेलरेशन मे बी ऑपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, नो, लाइन में, उसकी लाइन में नहीं हो सकता है, तो इसके लिए ये नहीं होगा। सेकेंड, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, what should be the value? The acceleration may be perpendicular to its velocity. No, straight line में move कर रहा है तो अगर perpendicular to its velocity होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो सेकंड के लिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। द एक्सेलरेशन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यस ट्रू, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है, इन द डायरेक्शन भी हो सकता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन भी हो सकता है, मतलब डी भी करेक्ट है। द एक्सेलरेशन मे बी एट एनी एंगल, अगर किसी और एंगल में होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब ये नहीं हो सकता। थर्ड, फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, अल्फा lying between 0 to π/2, the acceleration may be perpendicular to its velocity, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन में बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, या एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्शन, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सेलरेशन g है और ये वेलोसिटी है उसकी, तो उस टाइम पे ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो मतलब थर्ड के लिए A इज वन ऑफ द ऑप्शंस। द एक्सेलरेशन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इस तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। द एक्सेलरेशन मे बी एट सम एंगल थीटा, यस, किसी भी एंगल पे हो सकता है और होता भी है, एंगल चेंज होता रहता है, सो सी कैन बी a correct answer. The acceleration may be opposite to its velocity, no. For a particle moving in space, the acceleration may be perpendicular, हो सकता है, in the direction of velocity हो सकता है, एंगल पे हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है हम अप्लाई कैसे करें। स्पेस का मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बट फोर्स लगाया तो जा सकता है ना, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाओ। तो फोर्स के लिए चारों कंडीशंस पॉसिबल हैं, कुछ भी हो सकता है, ABCD, एक्सेलरेशन कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। Okay, so these were few questions of motion in a plane. मोस्टली आपको इसमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सिचुएशंस मिलती हैं, आपको बस एक्सेलरेशंस का ध्यान रखना है, और जो भी केस हो उसको वेक्टर्स के साथ डील करना है, विदाउट वेक्टर्स आप मोशन इन अ प्लेन को हैंडल नहीं कर सकते। In the next class we'll be talking about some questions related to Newton's laws of motion, then work, energy and power, and then finally we'll wind up with this and we'll start with grade 12 syllabus. Anyway, if you think that this can help anybody, please share it, and please try doing the questions because your practice will matter. सिर्फ ही questions देख लेने से कुछ नहीं होगा, you will have to solve, you'll have to try solving these questions, then only it's going to help. Anyway, have a good day, bye bye.